You had seen, you had already used the strings. Okay, where it is used. Characters. Yes. String means it is a collection of a character. It is the sequence of a character. Multiple characters sequence वाइज अगर हम लिखते हैं, that is the string. अब string क्या है guys Java में? String is a object in Java programming guys. String is a class which is present in which package guys? Java.lang package, right? So without a string, can we implement our logic, guys? That is possible without the string, guys? No possible. Okay. Yes, we can develop any application without the string, but not a good application is developed by without using the string concept. String is a very important concept in Java programming, guys. And in the interview point, string is a very important topic. Whenever we will go for an interview, then interviewer asks some questions on a string topic regarding to the string programs and string theoretical concepts. So, right, without a string means whatever written by us, they are in the form of a string. जो भी लिखते हैं हम प्रोग्रामिंग में कोड लिखते हैं ना, जो भी whatever code we are developed implemented, those code written in a string format. Okay, system is a one kind of a string. Out is a one kind of a string, right? Everything. So variable name is also a string. Class name is also a string. Okay. We are passing argument array as a main method. Okay. We pass over there. Main method के लिए argument क्या पास किया है guys हम लोगों ने string array करके पास किया है, right? String का array. Whatever things is converted into the string. Okay. अब string होता क्या है? होती क्या है? String is a class in our Java. String is a object in our Java programming. So how we can use that? String represents sequence of characters enclosed within the double quotes. Okay, how we can denote the string guys in Java programming? By using the double quotes. Within a double quote, we can write anything that is the string that consider as a string in our Java programming. तो अभी किस पैकेज में मिलती है? Where this class is available in which package? String class is available in a java.lang package. अभी कब से आई है java.lang पैकेज में? JDK 1.0 से. ओके, Java 1 से वो स्ट्रिंग जावा में अवेलेबल है. ओके, अब देखना है कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द स्ट्रिंग. हमने मोस्टली वी हैड यूज्ड इट. ओके, हमने बहुत टाइम इसे ना यूज किया है इन आवर एप्लीकेशन. मींस व्हाटएवर स्क्रिप्ट वी आर रिटन एट, वहां पे ना हमने स्ट्रिंग का यूज किया है. तो हाउ वी कैन डिनोट द स्ट्रिंग, हाउ कैन यूज द स्ट्रिंग इन आवर प्रोग्राम्स? डिनोट इट बाय यूजिंग अ डबल कोड. विद इन अ डबल कोड जो भी लिखते हैं, व्हाटएवर वी आर रिटन विद इन अ डबल कोड, दैट इज द स्ट्रिंग इन अ जावा. अब उसका एग्जांपल देखा जाए तो नो सी एबीसी. So this is the one string because it is denoted by a double quote. Within कहाँ denote किया है इसे? Within the double quote. Then Java, small case, upper case, no problem. Then numbers 1 to 3, it which is denoted by double quote. Then single character also, and say that is the string. Are some examples of string. In many languages, strings are treated as a character array. अब होता क्या है ना, treated as a character array. हम array बनाते हैं, फिक्स साइज होता है. डायनामिक के लिए बनाते हैं क्या array? array डायनामिक नहीं होता है. array इज होमोजेनियस होता है. देन देखो कि उसकी साइज फिक्स होती है. कैरेक्टर एरे, अगर इफ वी क्रिएटेड अ कैरेक्टर एरे, अगर कैरेक्टर एरे अगर हम बना रहे हैं हम, तो एक क्या बन रही है वहां पे? स्ट्रिंग बन रही है. ओके, मोस्टली इन सम लैंग्वेजेस स्ट्रिंग्स आर ट्रीटेड एज अ कैरेक्टर एरे करके भी यूज किया जाता है. देन बट इन जावा स्ट्रिंग्स आर क्रिएटेड एज ऑब्जेक्ट्स. अब इसमें जावा में क्या होता है? स्ट्रिंग इज अ ऑब्जेक्ट. जैसे हमने देखा था ना यहाँ पे, सी now in our program we create one string.
मेन मेथड स्ट्रिंग क्या है गाइस, क्लास है। ओके, क्लास है तो फर्स्ट लेटर शुड बी ना अपर केस। स्ट्रिंग s1 is equal to assignment operator double quote, within a double quote java. Now see, this is the one object. Okay, ये क्या बना हमारा, java is the object of this type, string type. उसका रेफरेंस वेरिएबल क्या है गाइस, s1 is the reference variable, right? now अब रेफरेंस वेरिएबल को ही क्या बोलते हैं गाइस हम जावा में, बाय डिफॉल्ट दैट इज द ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट हमने देखा है कि जावा प्रोग्रामिंग में अगर ऑब्जेक्ट को हिट करते हैं, मींस डॉट ऑपरेटर से यूज करते हैं, हिट करते हैं तो देखो कि डॉट s1 डॉट करते हैं ना, तो सारी फंक्शंस कॉल होती है, वट एवर मेंबर्स अवेलेबल इन ऑब्जेक्ट क्लास एंड स्ट्रिंग क्लास, तो सारे मेंबर्स क्या हो गए पे कॉल हो गए। तो ऑब्जेक्ट थ्रू ही हम सारे फंक्शंस क्लास के अचीव कर सकते हैं, राइट? तो ये हुआ ना अभी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज अ ऑब्जेक्ट इन आवर जावा प्रोग्रामिंग। स्ट्रिंग क्या हुई फिर हमारी, ऑब्जेक्ट थी। यहाँ पे देखा हमने थ्योरेटिकली, यहाँ लिखा है ना, string is an object in java, in other languages strings are treated as a character array, but in string java में क्या होती है, strings are treated as a object। जावा में उसे क्या ट्रीट करते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं तो बाय यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट कैन वी एक्सेस object class and string class functions? Yes, we can access because that is the object। object का specification क्या है, object के साथ क्या क्या होता है, object has a having a state and behavior। State and behavior means any members, any fields we can access by using the object name। we can access any functions by using the object name। हम object name से ना functions को भी कॉल कर सकते हैं और variables को भी कॉल कर सकते हैं। to create and manipulate the strings java provide 3 classes। अब java में अगर हमें string manipulate करनी है, string use करनी है, तो how many ways we can use the string in our java programming guys? 3 ways, because there is a 3 classes provide the string, string buffer and string builder। these are the classes predefined in our java programming। अब देखो कि स्ट्रिंग जो क्लास है ना हमारी रेगुलर वाली क्लास, तो कब इन्वेंट हुई है, जावा में इनिशियल, जावा जहाँ से स्टार्ट हुआ है तब से ना हमें स्ट्रिंग अवेलेबल है। अब स्ट्रिंग का भी फंदा बहुत सारा है कि थ्योरेटिकली वहाँ पे ना, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए इम्यूटेबल का है, या तो वहाँ पे मोर देन मीन्स जो भी ऑपरेशन करने हैं हमें, ओके स्मूथली, तो वो टाइप के फंक्शंस अवेलेबल नहीं है इनसाइड इन स्ट्रिंग क्लास, तो वो सारे इम्यूटेबल है वो। अब म्यूटेबल करना है हमें, मतलब इम्यूटेबल मीन्स हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, वी कांट चेंज इन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं कर सकते। तो अगर हमें चेंज करना है, ओके, देन सब न्यू फंक्शनलिटीज यूज करनी है, अगर रिवर्स करना है, अपेंड करना है, ये सारी फंक्शंस अगर यूज करने हैं, तो वो कहाँ से मिलेंगे हमें, स्ट्रिंग बफर से। अब स्ट्रिंग बफर कब इन्वेंट हुआ है, जावा 5 जेडीके 5 से 1.5 से हम यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग बफर करके। अब देन देखो उसके बाद जेडीके 1.5 में और कौन सी क्लास इन्वेंट हुई है, स्ट्रिंग बिल्डर करके। अब इनका डिफरेंस अगर देखा जाए ना, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, इनका एग्जीक्यूशन का भी है, उसके बाद स्ट्रिंग म्यूटेबल, इम्यूटेबल उनका भी बनता है। देन देयर इज अ लॉट्स ऑफ प्रीडिफाइंड फंक्शंस इन अ स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर। नाउ सी, देखो कि हाउ कैन क्रिएट द स्ट्रिंग इन आवर जावा। हम मोस्टली अभी तक यूज कर रहे थे दिस वे, एक स्ट्रिंग बना देते थे, एक रेफरेंस वेरिएबल मींस वेरिएबल बना देते थे, एंड एक ऑब्जेक्ट मींस स्ट्रिंग डिनोट कर देते विद इन अ डबल कोट, राइट? यहाँ तक हमने सीखा था, मींस यहाँ तक हमने यूज किया, इस तरीके से हमने जावा में अभी तक यूज किया है स्ट्रिंग का। तो हाउ मेनी वेज वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्ट्रिंग इन जावा प्रोग्रामिंग। अब कितने वे से, हम कितने तरीके से we create the object of a string? There is a 2 ways to create the object of a string। through the one, first way is by literal। अब ना उसे हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया ना गाइस ये वाला, तो किस तरीके का ऑब्जेक्ट बनाया गाइस, लिटरल वे। दिस इज ऑब्जेक्ट क्रिएशन, किस तरीके से बनाए,
लिटरली हमने ऑब्जेक्ट बनाया, लिटरल वे। सेकंड होता है कि बाय यूजिंग अ न्यू ऑपरेटर। ओके, बाय यूजिंग अ न्यू ऑपरेटर मींस हम जैसे कि जनरली ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का। हाउ कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास? क्लास नेम s2 is equal to new class name and parenthesis semicolon. This is the second way to create the object of a class. अब देखो कि through the literals या तो थ्रू द बाय यूजिंग न्यू ऑपरेटर्स। अभी दो तरीके से ऑब्जेक्ट तो बन रहे हैं स्ट्रिंग के। अब ये वाला ऑब्जेक्ट किस मेमोरी में प्लेस होता है, और दिस ऑब्जेक्ट वेयर इट प्लेस इन आवर मेमोरी, वेयर इट इज लोडेड इन इनटू द मेमोरी, उसके बारे में देखेंगे। बिफोर दैट हमें देखना है कि हाउ मेनी वे वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट, देन और उसके बाद उससे भी पहले देखना है कि हाउ मेनी वेज वी यूज द we represent the string in our Java programming। देखो कि string से भी represent करते हैं हम। string क्या होती है? It is the collection of a character। collection होता है ना कैरेक्टर्स का, J A V A, ये क्या हुआ? हमारा सिंगल सिंगल कैरेक्टर है, इनका कलेक्शन है। तो उससे क्या बना? हमारा एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना जावा करके, राइट। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। सीक्वेंस वाइज है ना, J देन A V A, एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस वाइज। तो उसे भी हम क्या कहेंगे? स्ट्रिंग कहते हैं। सो नाउ अगर हमारे पास से ना कोई कैरेक्टर है, कैरेक्टर एरे बना रहे हैं, नाउ सी कैर ch एरे करके बनाया है, राइट। अब यहाँ पे एरे बना दिया तो इसका एरे की साइज क्या होती है? हमारी फिक्स होती है। उसे अगर इनिशियलाइज कर देते हैं, नाउ वी आर इनिशियलाइजिंग। अब यहाँ पे कैरेक्टर, हाउ कैन डिनोट द कैरेक्टर? विथ इन सिंगल कोट, यहाँ पे सिंगल कोट में दे रहे हैं, ओके। j देन कॉमा a b, ओके। नाउ ये बना हमारा एक कैरेक्टर एरे बन गया है। अब एक कैरेक्टर आ रहा है एज आर्गुमेंट अगर पास कर देते हैं हम, ओके। अगर इसे ना पास कर देते स्ट्रिंग में, यहाँ का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, चलो नया ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग s3 इज इक्वल टू न्यू। यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर रहे हैं मीन्स क्या कर रहे हैं हम गाइस? एक कैरेक्टर, यहाँ पे इसका है ना एक स्ट्रिंग बन जाएंगे, राइट। उसे अगर हम प्रिंट कर देते तो अब हाउ कैन यूज दैट? अब यहाँ पे ना स्ट्रिंग में ना मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। जैसे कि हमें दो ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इक्वल है या नहीं ये चेक करना है। जावा कंपेयर्स विद सेलेनियम, या तो दो ऑब्जेक्ट्स है। यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट बनेगा? इस s1 करके बना है एक वाला, दूसरा एक ऑब्जेक्ट बना है s2, देन वी हैव अ थर्ड ऑब्जेक्ट, थर्ड वन ऑब्जेक्ट s3। ये तीनों भी ऑब्जेक्ट चेक करना है। s1 इज कंपेयर विद द s2, s1 इज अगेन कंपेयर विद द s3। तो चेक करना है तो इक्वल है या नहीं, उसके लिए हमारे पास इक्वल्स मेथड है, ओके। देन इसे अगर जोड़ना है, जावा और ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज कॉन्केट विद सेकंड, उनको ऐड अगर करना है, जोड़ना है, तो उसके लिए कॉन्केट मेथड करके अवेलेबल है, ओके। तो हमने स्ट्रिंग देखा था कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग में स्ट्रिंग कॉन्केट करनी है, दो स्ट्रिंग को जोड़ना है, तो वहां पे हम क्या किसका यूज कर रहे थे गाइस? प्लस ऑपरेटर का यूज कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पे ना कॉन्केट करके मेथड है, अगर जोड़नी है दो स्ट्रिंग, अगर जोड़ना है तो कॉन्केट करके फंक्शन है। अगर स्प्लिट करनी है, स्प्लिट मीन्स कैरेक्टर कैरेक्टर में सिंगल कैरेक्टर में स्प्लिट कर देनी है स्ट्रिंग, हमें स्प्लिट करनी है तो स्प्लिट फंक्शन यूज करेंगे। अगर उसकी लेंथ फाइंड करनी है तो लेंथ फंक्शन यूज करते हैं, लाइक। अब होता है कि हर एक क्लास है ना कोई इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही होती है। जैसे कि स्ट्रिंग क्लास किस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है? बेसिकली इट इम्प्लीमेंट द कैर सीक्वेंस करके इंटरफेस होता है, कैरेक्टर सीक्वेंस करके। नाउ अब उसका क्या होता है कि अगर इम्प्लीमेंट कर रही है इंटरफेस को, तो उसका से स्पेसिफिक एबिलिटी बनेगी। किसकी? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का क्या एबिलिटी बनेगी गाइस? कैरेक्टर कैर सीक्वेंस को अगर वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, कैर सीक्वेंस ऑफ इंटरफेस इज इम्प्लीमेंटेड बाय द स्ट्रिंग क्लास,
then it is again implement serializable. serializable को भी implement करता है. Then again it is implemented to whom? String class implement the three interfaces in Java programming. अब यहाँ पे ना comparable right, ये हुई हमारी string class. ओके अब देखो गाइस यहाँ पे है ना सीखना है हमें. मार्कर इंटरफेस हमने सीखा था. मार्कर इंटरफेस का क्या होता है मीनिंग कि एम्प्टी इंटरफेस विदाउट एनी फील्ड एंड मेथड्स राइट. तो उसका एक स्पेसिफिकेशन होता है, उसका एक टैग होता है. वो है ना जेवीएम या तो कंपाइलर को इन्फॉर्म करता है कि देयर इज द एबिलिटी. व्हाट काइंड ऑफ एबिलिटी? अगर सीरियलाइजेबल है तो सीरियलाइज उसका ऑब्जेक्ट है ना टेक्स्ट मींस फाइल में से हो सकता है तो अक्रॉस द नेटवर्क से होता है राइट. अब उसके बाद हमने देखा था कि क्लोनेबल एक इंटरफेस था, मार्कर इंटरफेस. क्लोनेबल इंटरफेस को अगर कोई क्लास इंप्लीमेंट कर रही है तो उस क्लास ऑब्जेक्ट की एबिलिटी क्या होगी गाइस? क्रिएटिंग अ डुप्लीकेट, एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी. ओके डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो सकती है उस ऑब्जेक्ट की, बन सकती है राइट. तो अब यहाँ पे देखो कि गाइस स्ट्रिंग क्लास कितने सारे इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है? सीरियलाइजेबल, कंपेरेबल एंड कैरेक्टर सीक्वेंस. तो किसे इंप्लीमेंट कर रहा है? कैरेक्टर सीक्वेंस को भी कर रहा है. देन ये किसे इंप्लीमेंट कर रहा है? सीरियलाइजेबल. देन किसे इंप्लीमेंट कर रहा है? कंपेरेबल. अब देखो कि कंपेरेबल मींस इसका मीनिंग क्या बन रहा है गाइस? इसका एबिलिटी क्या होगा? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की एबिलिटी क्या होगी? कि कंपेरेबल मींस ऑब्जेक्ट कंपेरेबल होगी. स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्या होगे? कंपेरेबल. अब कंपेरेबल कब होता है, कब कंपैरिजन होता है गाइस? इफ द बोथ थिंग्स आर सेम, बोथ थिंग्स प्रॉपर्टीज आर सेम. ओके अगर वो कंपेरेबल कब होगा? नंबर एंड स्ट्रिंग में कंपैरिजन होगा क्या गाइस? नंबर फॉर्मेट एंड स्ट्रिंग फॉर्मेट में कंपैरिजन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वो नंबर है, ये स्ट्रिंग है. इट इज द कैरेक्टर सीक्वेंस ऑफ अ कैरेक्टर एंड नंबर्स आर इट इज द कलेक्शन ऑफ अ डिजिट्स. ओके वो डिजिट्स है, ये कैरेक्टर्स है. उसके बाद देखो कि हम देखना है कि प्राइम मिनिस्टर है, पीएम है, और उसके बाद कोई लोकल जैसे कि एमएलए वगैरह हो. ओके एमएलए, तो इनमें कंपैरिजन होगा क्या गाइस? कंपैरिजन. कंपैरिजन कब होता है? वो कंपेयर करने लायक हो. ओके इंजीनियरिंग एंड मेडिकल फील्ड बोथ आर कंपेरेबल ईच अदर. वो कंपेरेबल है क्या ईच अदर? नहीं है. इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग की कोई स्ट्रीम के साथ हम कोई ब्रांच होगी दूसरी, उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं. तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यहाँ से क्या मिलती है एबिलिटी गाइस? विच काइंड ऑफ एबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट? वो कंपेरेबल होते हैं ईच अदर, दे आर कंपेरेबल. क्योंकि उसका मीनिंग है कंपेरेबल इंटरफेस का है कि कंपेयर करने के लिए राइट. देन सीरियलाइजेबल, सीरियली इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? फाइल में सेव हो सकता है या तो अक्रॉस द नेटवर्क यूज होता है, सेव होगा राइट. उसके बाद अब कैरेक्टर इन सीक्वेंस को अगर वो इंप्लीमेंट कर दिए स्ट्रिंग क्लास, तो स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट की क्या एबिलिटी होगी गाइस यहाँ पे? तो वो कैरेक्टर ऑफ सीक्वेंस, उसका मीनिंग है कि सीक्वेंस ऑफ अ कैरेक्टर. स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट किस तरीके के रहेंगे गाइस? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स राइट. यहां तक समझ में आया? यस गाइस. string class implements three interfaces: character, char sequence, serializable and comparable. These interfaces is implemented by the string class. So how we can create the object of a string in Java guys? Two ways we can create the object of a string class. By first way is by using a literal and second is by using a new operator, right? Now see how many ways we create the object of a string guys in Java programming.
two ways we create the object of a string. First होता है कि literal way, okay, by using a literals, literal. And second होता है by using a new operator. Good. Okay, by new, जैसे कि जनरल क्लास ऑब्जेक्ट बनाते हैं by using a new, तो वहां पे भी क्या होता है कि न्यू से अगर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इफ वी आर क्रिएटिंग एनी क्लास ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग अ न्यू ऑपरेटर, देन वन ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड, वो कोई भी एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा अगर न्यू बाय यूजिंग न्यू ऑपरेटर बना रहे हैं तो। ओके, अब होता है क्या ना, लिटरल से अगर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम, इफ वी आर क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग अ लिटरली, then those object will be loaded into the which memory guys? String constant full memory. ये सारे ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्टोर होंगे? इफ वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग अ लिटरल वे गाइस, those object is placed in a where string constant full. अब string constant full है ना, it that memory is for only the string objects. जैसे कि हम जनरल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो जनरल क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके लिए स्ट्रिंग कांस्टेंट फुल नहीं होता है, ओनली फॉर द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट. अब देखो कि थ्रू द लिटरल वे अगर हमने ऑब्जेक्ट बना दिया है तो वो कहाँ पे स्टोर हो गए? स्ट्रिंग कांस्टेंट फुल. स्ट्रिंग कांस्टेंट फुल नाम की मेमोरी किसके लिए अवेलेबल होती है? ओनली फॉर द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स. अब इसमें देखा है ना कि डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट नहीं बनता है हमेशा. वी आर नॉट क्रिएटेड द डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट. स्ट्रिंग के ना मल्टीपल ऑब्जेक्ट, सेम तरीके के ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते. वी कैन क्रिएट अ डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्ट्रिंग. नाउ इफ वी आर डूइंग दैट थिंग, देन व्हाट विल हैपन? अब सारे स्ट्रिंग थ्रू द लिटरली हम अगर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो where they are that type of object, where it is loaded in which memory guys? String constant pool. means heap में एक memory create होती है, string constant pool करके होते हैं heap memory में. तो string constant pool में क्या होता है कि उसका ऑब्जेक्ट स्टोर होता है. जैसे कि हमने एक जावा करके ऑब्जेक्ट बना दिया है, ये कहाँ पे स्टोर होगा गाइस? अब ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल. अब इसमें स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में लोड होने से पहले, उससे पहले क्या होता है कि देखो कि अगर जब ऑब्जेक्ट बन रहा है लिटरल वैसे हमने ऑब्जेक्ट बना दिया है, तो जेवीएम का काम क्या होता है गाइस कंपाइलर का? तो वो चेक करता है कि इन स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल वो चेक करेगा, इज देयर एनी ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ऑलरेडी प्रेजेंट और नॉट. लाइक विच काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट? जावा टाइप का एक ऑब्जेक्ट वहां पे अवेलेबल है या नहीं है. ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट होगा तो वो सेम ऑब्जेक्ट क्या करेगा? वो रिप्लेट कर देगा. यहाँ पे देखो कि चलो ठीक है, नाउ सी, ये हमारी है ना स्ट्रिंग कांस्टेंट मींस हीप मेमोरी है. ओके, अब इसमें हमने बना दिया एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल बन रहा है. तो किसके लिए बन रहा है गाइस? हीप मेमोरी में एक हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल है. Okay, string constant pool. When we create the object by using the literal, so how we can create the object by literal? When string s1 is equal to denoting within the double quote, now we create a java object, right? So jvm का काम क्या होता है कंपाइलर का गाइस? अगर लिटरली हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, लिटरल वैसे अगर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं स्ट्रिंग का, अभी देखो लिटरली हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो जब हम इंटरनली, अब यहाँ पे ना ये सारा, अब ये वाला ऑब्जेक्ट है ना कहाँ स्टोर होगा? where it is loaded into memory guys? in which memory? string constant pool हीप मेमोरी की. यहाँ पे ना एक जावा नाम का ऑब्जेक्ट हमारा स्टोर होगा, यहाँ पे क्रिएट होगा. अब यहाँ से देखो क्या, पहले ना स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में कोई ऑब्जेक्ट अवेलेबल है क्या गाइस जावा नाम से? यस गाइस, इज देयर No, एनी sir. ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट? नहीं है. नहीं है.
तो अभी क्या करेगा, नया हमारा ऑब्जेक्ट लोड हो जाएगा, राइट, जावा नाम से हो गया। अब देखो, नाउ वी आर क्रिएटेड वन मोर ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में हम नया एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू, अगर हमें सेम ऑब्जेक्ट बनाना है, नाउ डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बनता है क्या, इससे मेमोरी सेव होती है हमारी, इफिशिएंट मेमोरी यूज होती है अगर स्ट्रिंग क्लास से हम ऑब्जेक्ट बनाए लिटरली, अगर लिटरल वे से। तो देखो यहाँ पे ना फिर से हम किसका ऑब्जेक्ट बना रहे, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना रहे, किस टाइप का बन रहा है, जावा का। अब जेवीएम चेक करेगा इंटरनली, जेवीएम का काम क्या है, चेक करना है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल को चेक करना है, देयर इज अ ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट और नॉट, विच काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस तरीके का हम ऑब्जेक्ट बना रहे, जावा नाम का ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है क्या स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में, यस, जावा नाम का ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा था गाइस, नाउ सी, अबे सी जावा है ना, किससे रेफर कर रहा है, उसका रेफरेंस वेरिएबल s1 बना, राइट। अभी देखो जावा हम s2 से ना नया ऑब्जेक्ट बना रहे जावा, तो जावा जेवीएम चेक कर रहा है कि इंटरनली स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में जावा नाम का ऑलरेडी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट है या नहीं है, ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट है तो इसे ही क्या कर देगा वो, रिप्लेस कर देगा, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा क्या इसमें स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में गाइस, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, सेम ऑब्जेक्ट इज रिप्लेस्ड, ओके। सेम ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, इस स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में ना डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट गाइस। इससे क्या हो रहा है गाइस, मेमोरी एफिशिएंट यूज हो रही है हमारी, समझ में आ रहा है ना। स्ट्रिंग लिटरल वे से अगर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं स्ट्रिंग क्लास का, तो ये ना स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में वो प्लेस हो रहा है, लोड हो रहा है, उसके बाद स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में ना डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट लोड नहीं होते हैं, सेम ऑब्जेक्ट ही रिफ्लेक्ट हो जाते हैं विद न्यू रेफरेंस। अब देखो S1 से हमने बनाया था, तो S1 में मेमोरी लोकेशन किसका आ गया, जावा ऑब्जेक्ट का किसमें लोड हुआ है मेमोरी लोकेशन एड्रेस, S1 में, S1 इज पॉइंटिंग टू दैट ऑब्जेक्ट लोकेशन, S1 पॉइंट कर रहा है ना उस ऑब्जेक्ट मेमोरी लोकेशन को, सेम। अब उसके बाद हमने S2 से एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया है, तो उसमें भी क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पे जावा जो ऑलरेडी अवेलेबल है ऑब्जेक्ट, वो सेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, सेम मेमोरी लोकेशन क्या कर दे रहा है उसमें S2 में रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है क्या गाइस, जेवीएम, जेवीएम नया ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा है। अब अगर हम ट्राई करते हैं, इफ वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे हमने ना ऑब्जेक्ट बना दिया है स्ट्रिंग s3 इज इक्वल टू डबल कोट, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बना दिया है JAVA। अब ये देखो कि यहाँ पे ना जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, राइट। केस सेंसिटिव मींस जिस तरीके से हम वेरिएबल्स बना रहे हैं या वेक्टर नेम दे रहे, क्लास नेम दे रहे या ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल नेम दे रहे, बस उसी तरीके से वही सेम नेम से हम उसे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कैपिटल लेटर में JAVA, अब ये वाला ऑब्जेक्ट, बोथ द ऑब्जेक्ट आर सेम गाइज, बोथ ऑब्जेक्ट सेम है क्या गाइस, अभी नाउ दे आर नॉट सेम इच अदर, क्योंकि ये लोअर केस में या अपर केस में, तो जावा क्या है हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो अब इंटरनली क्या करेगा, जेवीएम चेक करेगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल, एसीपी चेक करेगा इज देयर एनी जावा ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट और नॉट, अब ऑलरेडी तो एग्जिस्ट है, अभी JAVA करके नाम से स्मॉल केस से, तो इसके साथ क्या होगा, इसका कंपैरिजन होगा, ये जो नया ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, इन दोनों में ना कंपैरिजन होगा, तो बोथ आर इक्वल्स गाइस, इक्वल्स है क्या हो, बोथ आर डिस्टिंक्ट, वो दोनों भी इक्वल्स नहीं है, तो जेवीएम क्या करेगा, नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, और अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो जेवीएम नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाता, अगर नया ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं है तो वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, राइट। अब देखो यहाँ पे स्मॉल केस में था, अब हमने अपर केस में यूज किया है, इस तरीके का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन जाएगा, और उसे उसका रेफरेंस वेरिएबल क्या रहेगा, S3, ओके। हो रहा है, नया ऑब्जेक्ट बन गया, अगर ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बना हुआ है सेम, तो नया ऑब्जेक्ट बनाता नहीं है, ओके।
रिटर्न क्या करेगा, अगर सेम ऑब्जेक्ट रहेगा तो रेफरेंस रिटर्न कर देगा। यहाँ पे सेम ऑब्जेक्ट था तो बस रेफरेंस रिटर्न कर दिया। यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट बना क्या गाइस, फर्स्ट प्रोसेस में नहीं है, स्ट्रिंग कांस्टेंट फुल में होता है। अब स्ट्रिंग पे से हमें क्यों बनाना है ऑब्जेक्ट गाइस, बाय वी गो थ्रू द स्ट्रिंग लिटरल्स, क्योंकि अगर स्ट्रिंग लिटरल का यूज करेंगे हम तो एफिशिएंट मेमोरी यूज होगी, क्योंकि मोर मेमोरी हमें यूज लगेगी नहीं, क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट अगर डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो सेम ऑब्जेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो उसका रेफरेंस वो रिटर्न कर देगी बस, उसमें नया ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं हमारा, राइट। अगर न्यू कीवर्ड से बना रहे, सेकंड में हमारा कैसा है, हाउ वी कैन क्रिएट द, हाउ मेनी वेज वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्ट्रिंग गाइस, टू वेज वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्ट्रिंग, लिटरल एंड बाय यूजिंग अ न्यू कीवर्ड। अगर न्यू कीवर्ड से अगर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उससे क्या होता है कि कितने सारे ऑब्जेक्ट बनेंगे गाइस उस टाइम, if we are creating the new operator, there is a two object is created, one object is placed where guys, in a SCP, and second one is a non heap memory, means heap memory में वो प्लेस हो गए। अब उससे मेमोरी एफिशिएंट यूज हो गई क्या हमारी, ओके। नॉन कूल, अब जैसे कि बाय यूजिंग न्यू, अगर न्यू से अगर हम बनाएंगे ना कोई ऑब्जेक्ट यूजिंग न्यू ऑपरेटर, string s4 is equal to 3, ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना दिया हमने, देखो कि ओके। so, अब यहाँ पे किस तरीके से बनाया है, बाय यूजिंग न्यू से बनाया है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट अगर बन रहा है तो ये किस मेमोरी स्टोर में होगा गाइस, ये बनेगा हमारी नॉर्मल हीप मेमोरी में। जैसे कि ये हमारी आउटर साइड सर्कल है ना, वो क्या है हमारा हीप मेमोरी, अभी किस मेमोरी में क्रिएट होगा, हीप मेमोरी में, थ्रू द न्यू, बाय यूजिंग अ न्यू ऑपरेटर। अगर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं किसका गाइस, स्ट्रिंग का अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं बाय यूजिंग अ न्यू ऑपरेटर, तो वो ऑब्जेक्ट है ना कहाँ प्लेस होता है गाइस, इन हीप मेमोरी। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट फुल में होगा क्या, नो सर। ओके। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा वेलकम करके, ओके। इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ बन गया, इन हिप एरिया। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को, यस, यस सर। यस सर। okay. How many ways we create the object of a class, string class, two ways, literally, and second is by using a new operator. There is a multiple functions used in a string class guys, वहाँ पे ना multiple functions होते हैं, उनका यूज करके हम नए ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। अब स्ट्रिंग किस टाइप की होती है गाइस, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। अब इम्यूटेबल क्यों होती है, व्हाई स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट बनाए हैं उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। इंसर्ट एग्जिस्टिंग जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा ना गाइस, वो क्या होता है, सेम होता है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि string is a immutable. Why string is a immutable guys, string object is a immutable, क्योंकि उस एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि हमारा एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट जावा बना है, अभी हम जावा को हम चेंज कर सकते हैं क्या गाइस, वो तो बन गया है, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, उस पर कोई रिफ्लेक्ट होगा नहीं। अगर हम कोई चेंज करके बना रहे हैं तो क्या होगा, उस टाइम न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ओके। यहाँ पे हम बना रहे हैं ना, एक नया ऑब्जेक्ट बना देते हैं नाउ से,
स्ट्रिंग s5 इज इक्वल टू, हम यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जावा से जावा, ओके, तो हमें ना s5 इज इक्वल टू s1 डॉट कॉन्केनेट मेथड यूज करते हैं। कॉन्केट मेथड यूज करके हम किससे अपेंड कर दे रहे, यहाँ पे पास कर देते हैं s2 पास कर देते हैं। यहाँ पे ना एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा s1 डॉट कॉन्केट s2, s1 की वैल्यू जावा है, s2 की वैल्यू जावा है, तो हमारा नया ऑब्जेक्ट क्या बनेगा गाइस, जावा जावा करके ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट बन गया हमारा, अब नया ऑब्जेक्ट बनाना है। s2 is equal to सेलेनियम, ओके। नाउ अब इसमें ना हमारे पास है ना बहुत सारे फंक्शंस है, ये ना स्ट्रिंग। अब देखो कि यहाँ पे हमें इसने ना इक्वल चेक करना है, इक्वल्स मेथड, बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल और नॉट। अब यहाँ पर अगर हमें चेक करना है, इक्वल्स मेथड यूज करनी है, इक्वल मेथड। अबे ऑब्जेक्ट अगर हमें s2 पास कर दिया है, इसका रिजल्ट चेक करना है। अब इक्वल मेथड रिटर्न टाइप क्या रहेगा गाइस, ट्रू एंड फॉल्स, बोथ ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल देन इट रिटर्न अ ट्रू, both the objects are not equal then it return a false। then किस डेटा टाइप्स में यूज करेंगे हम इसका, वेरिएबल boolean b is equal to this। अब अगर इसका रिजल्ट हमें प्रिंट करना है तो SYSO सिसो में हम किसे कॉल कर देंगे b। व्हाट इज द रिजल्ट गाइस, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या रहेगा अभी, नाउ व्हाट इज द आउटपुट, False. टेस्ट या तो एरर क्यों आ रही है, that I already defined main method not found, public static void main, okay। class body method body public static void main, ओके। कहाँ बना दिए इसे, sorry guys, the type test is already defined। P2 पैकेज में तो हमने एक ही टेस्ट बना दिया है, अभी बाकी इंटरफेस में काफी
Now F1 simple. Okay. See guys, अब ऑब्जेक्ट कितने तरीके से बना सकते हैं? कैन वी क्रिएट हाउ मेनी वेज फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्ट्रिंग गाइस? टू वेज वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्ट्रिंग. Literal, second, new. Okay, two ways we create the object of a class. But through the using the literal way, s1 is equal to new. Sorry, literally. Now, tell me guys, अभी ऑब्जेक्ट किस मेमोरी में स्टोर होगा? हिप में भी स्टोर होगा, बट उसके यहाँ पे ना स्पेशल मेमोरी, एक स्पेशल फोल्डर क्रिएट होता है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के लिए. उसका नाम क्या होता है गाइस? स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल. अभी कब होता है? लिटरली, अगर लिटरल वे से अगर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, लिटरल वे से आप इफ वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्ट्रिंग, which way guys? Literal way. Then that object is stored into which memory guys? heap memory में एक स्पेस होता है, उस मेमोरी लोकेशन में स्पेस का नाम होता है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल करके. ओके, उस मेमोरी में ना जावा ऑब्जेक्ट लोड होगा. लोड होने से पहले जेवीएम का काम क्या होता है गाइस? जेवीएम विल चेक is there any object already exist or not. जावा नाम का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी, सेम ऑब्जेक्ट is available or not, वहां पे अवेलेबल है या नहीं है. if that object is already exist होगा, वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल होगा, तो क्या होगा? तो उसका रेफरेंस रिटर्न करेगा. जेवीएम क्या करेगा? रेफरेंस रिटर्न करेगा. वहां पे न्यू ऑब्जेक्ट लोड नहीं करेगा. एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी वहां पे बनेंगे कि गाइस? नहीं बनेंगे. सेम रिफ्लेक्ट करेगा, रिटर्न करेगा, रेफरेंस रिटर्न करेगा. राइट. तो यहाँ पे देखो कि हमने बना दिए, दो ऑब्जेक्ट बना देते हैं सेम. s2 इज इक्वल टू जावा. नाउ सी गाइस, अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बनेंगे क्या स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में? जावा जावा करके. पहले ऑब्जेक्ट के टाइम क्या होगा? जेवीएम चेक करेगा इज देयर एनी ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट, तो जावा है ना लोड कर देगा. लोड होने के बाद अगर हम सेम थिंग कर रहे हैं, सेकंड टाइम सेम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो जेवीएम विल चेक देयर इज एनी ऑब्जेक्ट इज अवेलेबल और नॉट. यस, ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो उसका रेफरेंस रिटर्न करेगा. s2 को क्या कर देगा? उसका रेफरेंस मींस मेमोरी लोकेशन रिटर्न कर देगा. नया ऑब्जेक्ट बनेगा क्या s2 के लिए गाइस? s2 के लिए नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, पहला जो ऑब्जेक्ट है वही रिफ्लेक्ट होगा. राइट. देन अब यहाँ पे हमें अगर चेक करना है s1 डॉट इक्वल्स, सॉरी, s1 डॉट इक्वल्स s2. अब देखो यहाँ हमें क्या करना है? चेक करना है. तो इसका आउटपुट किस में आएगा? बुलियन में. बुलियन वैल्यू रिटर्न होगी. बुलियन वैल्यू शुड बी, सो यहाँ पे हमने बुलियन को चेक करना. व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आंसर? यहाँ पे आई ट्रू करके, क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है ना s1 s2 से. बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर सेम. यहाँ पे हमें क्या करना है? नाम एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में चेंज करना है एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट. अब एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट चेंज होता क्या है वो देखना है गाइस, क्योंकि जावा का ऑब्जेक्ट क्या होता है कि इम्यूटेबल. इम्यूटेबल्स मींस वी कांट चेंज द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट. हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते. इम्यूटेबल मींस नॉट चेंजेबल. तो चेंजेबल ऑब्जेक्ट चेंज हो सकता है क्या? नहीं होता है. तो सी गाइस, यहाँ पे हमने ना क्या बना दिया है? s1 डॉट कॉनकेट फंक्शन. यहाँ पे हमने ना एक स्ट्रिंग दे देनी है, यहाँ पे हम ना s2 दे देते हैं. यहाँ पे s2 दे दिया है. तो यहाँ देखो ना, इसका रिजल्ट क्या आएगा? जावा जावा करके ऑब्जेक्ट बनेगा क्या गाइस? रन एज जावा एप्लीकेशन. ओके.
एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब इसे पॉइंट कौन कर रहा है गाइस? अब ये क्या हुआ है, नया ऑब्जेक्ट बना है। जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट था ना उसमें चेंजेस हुए क्या? उसमें चेंजेस नहीं हुए। S1 किसे पॉइंट कर रहा है? जावा को कर रहा है। S2 भी सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। अब S3 जावा जावा करके बन रहा है। अब इसे कोई पॉइंट कर रहा है क्या गाइस? देयर इज नो एनी रेफरेंस वेरिएबल। तो अगर इससे पॉइंट करवाना है, अगर एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में हमें मीन्स उसमें तो चेंज होता नहीं है, बट नया एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। S3 इज इक्वल टू, अगर इसे रेफरेंस वेरिएबल देते हैं एक S1 डॉट कॉन्केट, कॉन्केट मेथड यूज कर रहे हैं। यहाँ पे S2 को ज्वाइन करना है, मतलब कॉन्केटेंट करना है। यहाँ पे ना एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, यहाँ से एक नया, इस लाइन से क्या बन रहा है हमारा, एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है। जावा के साथ जावा ऐड होके उसका रेफरेंस वेरिएबल कौन सा रहेगा गाइस? S3 रहेगा। S3 हमने ना S3 से ही इसे डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे ना S1 S2 में एग्जिस्टिंग जो भी ऑब्जेक्ट था उसमें चेंजेस हो रहे हैं क्या गाइस? नहीं हो रहे। यहाँ पे ना मेमोरी में क्या होगा, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। हेलो सी, यहाँ है ना एक जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट था हमारा जावा, जावा जो ऑब्जेक्ट है ना हमारा, एक्सपेक्ट क्या है, कॉन्केनेट कर रहे, तो मीन्स इस एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को ही ना यहाँ पे ना 1 मिनट, यहाँ है ना जावा करके, जावा जावा करके ऐसा एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा। इस तरीके से ऑब्जेक्ट एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में चेंज होके बनेगा गाइस? नहीं होगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग जैसा था वैसा ही रहेगा। वहाँ पे कंपेयर होगा कि वहाँ पे ऑलरेडी ऑब्जेक्ट अवेलेबल है या नहीं है, नहीं है तो नया ऑब्जेक्ट बनेगा उस मेमोरी में, इस तरीके का। तो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट जैसा था वैसा रहेगा हमारा, एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा। ओके, क्योंकि स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट एक वंस अगर हमने एक बार क्रिएट कर दिया उसमें चेंजेस नहीं होते, चेंजेस करना है तो नया ऑब्जेक्ट बनेगा, सेम ऑब्जेक्ट नहीं रिफ्लेक्ट होगा। ओके, सेम ऑब्जेक्ट में ना हम चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज उसका स्पेसिफिकेशन क्या, फीचर्स क्या, व्हाट आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ स्ट्रिंग? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज इम्यूटेबल। हमेशा इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज मीन बाय इम्यूटेबल? इम्यूटेबल मीन्स उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। अब स्ट्रिंग कहाँ का यूज कर करते गए, जैसे कि यूजर नेम हो, पासवर्ड हो, जैसे कि लॉगिन आईडीज होते हैं, लॉगिन पासवर्ड्स होते हैं। ओके, अब अगर इम्यूटेबल स्ट्रिंग होती, नहीं होती, अगर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल नहीं होते तो क्या होता, कोई भी क्या कर देता, लॉगिन आईडी पासवर्ड जो होता है, यूजर आईडी पासवर्ड, उसमें क्या कर देता बंदा, कोई भी बंदा चेंज कर देता। ओके, वो चेंज होता है कि वंस हमने अगर क्रिएट कर दिया है यूजर आईडी एंड पासवर्ड, तो हमें चेंज करना है तो प्रीवियस जो भी था हमारा उसे यूज करके हम नया क्रिएट कर सकते हैं। मॉडिफाई होता नहीं है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है ना, इम्यूटेबल मीन्स वो मॉडिफाई नहीं होता है, उसमें हम चेंज कर नहीं सकते हैं। वो होता है फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। One string object is created, its data or state can't be changed, but a new string object is created. क्या होता है कि हम वंस कोई भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना देते हैं तो उसका डेटा और स्टेट, स्टेट जो भी रहेंगी वो सेम रहेंगी, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हमें चेंज करना है तो उस टाइम क्या रहेगा गाइस, हमारा नया ऑब्जेक्ट बनेगा। ओके, एग्जिस्टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अब यहाँ पे देखना है ना हमें चेंजेस होते या नहीं होते। ये देखो कि यहाँ तक हमने बना दिया इस तरीके से, ये वाला है ना निकाल देती है पूरी लाइन। सो टेल मी गाइस व्हाट इज द आउटपुट। अब यहाँ है ना हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू जावा, हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है। अब एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में चेंज होता है या नहीं होता है, मॉडिफाई होता है क्या? हमारे हिसाब से तो नहीं होता है, बट हम यहाँ पे वी आर ट्राइंग टू चेंज इट। मैंने
एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं जावा सेलेनियम। ओके, अब देखो गाइस, यहाँ पे हम एसओ करते हैं अगर हमें प्रिंट करना है। अब देखो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट हमारा S1 था, यस। अब S1 पे हमने क्या किया है, चेंजेस किए, ऑपरेशंस किया है। कॉन्केट मींस जोड़ रहे, जावा के साथ सेलेनियम जोड़ना है हमें, जावा सेलेनियम करके। किस टाइप का आउटपुट बनेगा गाइस, यहाँ पे देखो कि जावा सेलेनियम, इस तरीके का आउटपुट बनेगा, राइट। यहाँ पे देखना है कि हमें आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पे अगर हम S1 कॉल करते हैं ना, तो आउटपुट क्या रहेगा गाइस, यहाँ पे टेल मी व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस लाइन। इस लाइन का आउटपुट क्या रहेगा अभी, यस जावा जावा करके रहेगा। जावा सेलेनियम सर। जावा सेलेनियम, एनीवन गाइस। सेलेनियम सर। सेलेनियम, यस। सेलेन क्या रहेगा यहाँ पे देखो गाइस, हमने देखा है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज इम्यूटेबल। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्या है, इम्यूटेबल। जो भी एग्जिस्टिंग हमने स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना दिया है वो अनमॉडिफाइड, मीन्स हम उसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते, अनचेंजेबल, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। स्ट्रिंग क्लास ऑफ स्ट्रिंग इज अ फाइनल क्लास इन जावा, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज अ फाइनल इन जावा। फाइनल क्यों गाइस, अगर किसी को हम फाइनल बना देते हैं तो उसका हम चेंज कर सकते हैं क्या गाइस, उसे चेंज कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो अगर फाइनल वेरिएबल डिक्लेयर कर दे उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं नहीं। कोई भी मेथड फाइनल बना दे तो उसे ओवरराइड कर सकते हैं क्या, नो वी कैन ओवरराइड द फाइनल मेथड्स। अगर कोई क्लास एज अ फाइनल डिक्लेयर कर देते हैं उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं क्या, इनहेरिट करके उसकी सब क्लास बनेंगी क्या गाइस, सब क्लास हम नहीं बना सकते। जैसे कि जावा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज इम्यूटेबल, इम्यूटेबल मीन्स वो कीप सेम, वो चेंज नहीं हो सकता है, मॉडिफाई नहीं हो सकता है। जैसे कि हमारा पहला ऑब्जेक्ट है जावा करके ऑब्जेक्ट है, इस पे हम इस एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं क्या गाइस, इससे मॉडिफाई कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज इम्यूटेबल। और ये भी और भी बोला जाए तो दैट इज द फाइनल ऑब्जेक्ट, दैट इज द स्ट्रिंग इज अ फाइनल, राइट। अब यहाँ पे हमें ना रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट रहेगा जावा करके आउटपुट रहेगा, क्योंकि कॉन्केनेट कर रहे हैं मीन्स हम यहाँ पे ना जोड़ रहे हैं दो स्ट्रिंग। S1 के साथ मीन जावा के साथ किसे जोड़ रहे हैं, नई स्ट्रिंग को जोड़ रहे सेलेनियम करके, तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, हमें जावा सेलेनियम करके। बट उस तरीके ऑब्जेक्ट में चेंजेस हो गए क्या गाइज, ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं होगा। नाउ सी, जैसे कि 1 मिनट, यहाँ आ गए हम। ओके, अब देखो हिप में स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल, ओके। उसके बाद ये हो रहा हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल, एसीपी स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल। ओके, एसीपी में हम किस तरीके का परफॉर्म कर रहे हैं, लिटरली string s1 is equal to डबल कोट जावा। अब जेवीएम चेक करेगा कि ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, नहीं है, नहीं है तो नया ऑब्जेक्ट बन रहा है। यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा, किस नाम का होगा, जावा करके नया ऑब्जेक्ट आ गया, यस। देन हमें चेंज करना है एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, s1 डॉट कॉन्केट कर रहे हैं, इससे किसके साथ जोड़ रहे गाइस, वी आर जॉइंड विद द सेलेनियम, सेलेनियम के साथ। यहाँ पे है ना एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, S1 ले लेंगे, S1 के साथ किसे जोड़ना है, S1 में क्या वैल्यू है, जावा नाम की वैल्यू है, ओके। सी गाइस 1 मिनट, जावा, ओके। जावा है, उस कॉन्केट करना मीन्स
हम प्लस ऑपरेटर से दो स्ट्रिंग जोड़ना है तो हम प्लस ऑपरेटर का यूज कर रहे थे वहां। ओके, तो यहाँ पे हमें ना स्ट्रिंग क्लास में ना कॉनकेट करके फंक्शन है, दो स्ट्रिंग को अगर जोड़ना है तो हम यहाँ पे कॉनकेट का यूज कर रहे हैं। अब सेलेनियम जोड़ना है तो इस तरीके से सेलेनियम करके एक ऑब्जेक्ट बनेगा। अब जब हम चेक करेगा कि यार जावा सेलेनियम नाम का ऑब्जेक्ट है क्या अवेलेबल यहाँ पे, नहीं है, तो क्या कर देगा, तुरंत नया ऑब्जेक्ट बनेगा। इस जावा को ही सेलेनियम जोड़ देगा क्या, इस एग्जिस्टिंग में मॉडिफाई नहीं होता है, अनचेंजेबल होता है, क्योंकि वो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मीन्स वो चेंज नहीं होना, चेंज होता नहीं। एक नया ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन जाएगा सेलेनियम करके, जावा सेलेनियम। अब गाइस यहाँ पे देखो, इसमें रेफरेंस वेरिएबल है क्या कोई गाइस यहाँ पे अवेलेबल है इसका? जैसे कि पहले जावा था हमारा, इसे पॉइंट कौन कर रहा है, s1 पॉइंटिंग टू होम गाइस, जावा ऑब्जेक्ट को कर रहा है। अब जावा सेलेनियम नाम का एक नया ऑब्जेक्ट बना है। सॉरी वन थिंग गाइस, यहाँ पे ऐसे भी शॉर्टकट में हो गया तो किस बंदे को लगेगा कि एक ऑब्जेक्ट है, इस मेमोरी लोकेशन का मेमोरी जो बनती है ना, उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग कांस्टेंट फूल, तो यहाँ पे ना स्ट्रिंग कांस्टेंट फूल में ना जावा प्लेस हो गए हैं, जावा लोड हो गए हैं। अब हम उस पर कॉन्केनेट कर रहे हैं, मीन्स उसमें मॉडिफाई कर रहे हैं एग्जिस्टिंग में। तो एग्जिस्टिंग में मॉडिफाई होता है क्या स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट? नहीं होता है, इम्यूटेबल होता है। तो एक नया ऑब्जेक्ट बन गया जावा सेलेनियम करके। तो अब इसे कोई पॉइंट कर रहा है क्या गाइस? क्योंकि यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं है ना, रेफरेंस। अगर रेफरेंस वेरिएबल, अगर कोई वेरिएबल में हम नई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं तो हम उसे रीयूज कर सकते हैं क्या गाइस हमारे प्रोग्राम में? वो यूजेबल होता है क्या? अगर वो जावा सेलेनियम नाम का ऑब्जेक्ट हुआ है, बना है, तो मेमोरी में लोड भी हुआ है, बट उसे हमें यूज करना है, उसे यूज अगर करना है तो कोई ना कोई वेरिएबल में उसकी वैल्यू असाइन करनी होगी ना हमें, कोई ना कोई उसे पॉइंट करने वाला वेरिएबल होना चाहिए। अब देखो कि जैसे कि हम बोलते हैं ना एग्जाम देते हैं, तो एग्जामिनेशनर होता है या तो हमारा सुपरवाइजर होता है, वहां पे हमारे एग्जाम कंडक्ट करता है। ओके, अगर वो नहीं रहेगा तो कौन कंडक्ट करेगा, हु कंडक्टेड, कोई कंडक्टेड नहीं करेगा। कोई भी मतलब कोई बंदा है ना पेपर ढंग से लिखेगा क्या? कोई भी कहीं पे बैठेगा पेपर लिख देगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि सुपरवाइजर, हम बोलते हैं ना हमेशा कंपनी में मैनेजर है, एचआर है, सुपरवाइजर है, ये क्या होता है, टीम लीड है। ओके, टीम लीडर है, ये क्या वो करते हैं गाइस, ये रेफर कर रहे हो, हम पे ध्यान रख, मतलब उनका ध्यान होता है। ओके, हमें वो पॉइंट आउट करते हैं, तभी तो काम होता है यहाँ से। अगर एचआर ही नहीं है, मैनेजर ही नहीं है कंपनी में, टीम लीड ही नहीं, कोई भी बंदा किसी का सुनेगा नहीं, अपना अपना चलाएगा। ओके, तो आप इसमें जावा प्रोग्रामिंग में ना हर एक वैल्यू होती है ना, हर एक डेटा वो है ना वेरिएबल में स्टोर करते हैं। क्यों करते हैं? कि वो वेरिएबल से हम उसे कॉल कर सकते हैं, उस वेरिएबल से हम उसकी वैल्यू यूज कर सके, उसका डेटा जो मेमोरी में है या तो हमारे प्रोग्राम में यूज हो रहा है करके हम वेरिएबल्स बनाते हैं। अब वेरिएबल्स ही नहीं है, इसे कोई पॉइंट ही नहीं कर रहा है, तो ये वाला वैल्यू यूज होगा क्या? मुझे अगर कंसोल पे आउटपुट चाहिए, क्या आउटपुट चाहिए? जावा सेलेनियम करके। यहाँ पे देखो कोई वेरिएबल है यहाँ पे, मैं उसे कॉल करके उसे प्रिंट कर सकूं अगर करना है। अगर मैं मुझे करना है तो यहाँ पे S1 को कर दिया, यस आई नो द S1, यस S1 को मैंने कॉल कर दिया, तो आउटपुट क्या रहेगा? सीधा आउटपुट देखो यहाँ पे जावा करके आउटपुट आ रहा है, जावा सेलेनियम आ रहा है क्या आउटपुट गाइस? अगर मुझे जावा सेलेनियम वैल्यू ना मेरे प्रोग्राम में यूज करनी है, मुझे यहाँ पे ना कंपैरिजन में यूज करनी है। S1 डॉट कंपेयर किसके साथ करना है? जावा सेलेनियम के साथ करना है। इक्वल्स, यहाँ पे इक्वल्स का क्या है गाइस? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे स्ट्रिंग हम पास करते हैं यहाँ पे, तो होगा क्या गाइस यहाँ पे? तो हमें क्या पास करना है? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पास करना है। यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग पास करो यहाँ पे, चलो ठीक है, हम हमें पता ही नहीं अभी कहाँ पे स्टोर हुए हैं, हमें पता है कि लॉजिकली इस तरीके से वो स्ट्रिंग बन गई है, तो ये अगर ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे पास कर देते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है। बट अगर ये किसी रेफरेंस किसी रेफरेंस वेरिएबल में अगर स्टोर होता है ना, तो वो क्या होता है हमारे लिए सिंपल हो जाता है, हम उसे यूज कर पाते, रीयूज कर सकते थे उसकी वैल्यू कोई भी लॉजिक में हम
यूज कर सकते थे। बट यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, S1 अगर प्रिंट कर रहे हैं, हमारा मोटो क्या था गाइस, फर्स्ट मोटो क्या था हमारा, पहला तो हमें देखना था कि एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस होते हैं या नहीं होते हैं। अब एग्जिस्टिंग में ऑब्जेक्ट में हमने चेंज करके देखा S1 डॉट कॉन्केट, कॉन्केट करके देखा तो यहाँ पे चेंज हुआ क्या, जावा सेलेनियम हमने यहाँ पे प्रिंट करके देखा। 1 मिनट, इसे ना साइड रखते हैं, साइड कर देते हैं। यहाँ पे S1 हमने कॉल किया, S1 की वैल्यू आप क्या होनी थी गाइज, हमारे हिसाब से, हमारे लॉजिक के हिसाब से ना चेंज होनी थी, मॉडिफाई होना था। जो जावा था तो सेलेनियम के साथ ज्वाइन होके यहाँ पे आउटपुट क्या था होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड गाइज सेलेनियम, इस तरीके का आउटपुट हमें यहाँ प्रिंट करना था एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को चेंज करके। तो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट जावा था तो जावा ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। जावा सेलेनियम करके ऑब्जेक्ट बन रहा है क्या गाइस, वो बन रहा है, एसीपी में बन जा रहा है, बट उसे रेफरेंस वेरिएबल नहीं है। हमें क्या करना था, एग्जिस्टिंग मींस जावा ऑब्जेक्ट को है ना, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को हमें मॉडिफाई करना था। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट मॉडिफाई होते हैं क्या गाइस, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट मॉडिफाई नहीं होते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट बनता है, क्योंकि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है ना इम्यूटेबल होते हैं, उसमें हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो सेम ऐसे किस, देखो कि मेमोरी में किस नाम से बना था वो, यहाँ पे जावा था, जावा जावा ही रहा है सेम ऑब्जेक्ट, तो उसमें कोई मॉडिफाई नहीं हुआ। अगर एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में मॉडिफाई होते, वो अगर म्यूटेबल म्यूटेबल अगर रहते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता गाइस, सेम ऑब्जेक्ट है ना, नियम करके नया ऑब्जेक्ट बन जाता जावा सेलेनियम, यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं बनता, एक ही ऑब्जेक्ट मींस जो भी ऑब्जेक्ट था उसको ही मॉडिफाई कर दो। अब देखो इसका डिसएडवांटेजेस क्या है गाइस जावा प्रोग्रामिंग में, सिक्योरिटी पर्पस, स्ट्रिंग, why we use the string objects in Java mostly guys, because the string is a safe, string object is a immutable, वो मॉडिफाई नहीं होते हैं। अब चलो कोई दूसरा बंदा आया, तेरा आईडी पासवर्ड है, आके चेंज करके चला गया, अगर उसने चेंज कर दिया तो सब सारे लोगों के लिए वो रिफ्लेक्ट होगा सेम। जैसे कि मानो आप कंपनी जा रहे हो, कंपनी ऑफिस जा रहे हो ना, तो लॉग इन करना होता है, हर एक बंदे के लिए ना एक ही पासवर्ड है। जैसे होता है ना कि एक टेम्पलेट है वहां पे, सेम पासवर्ड से बना है, कोई भी बंदा जा रहा है सेम पासवर्ड है, एंटर कर दे रहा है, एंट्री हो जा रही है, राइट। दूसरा बंदा आ रहा है सेम पासवर्ड एंटर कर रहा है, एंट्री हो जा रही है, थर्ड बंदा आ रहा है पासवर्ड एंटर कर दे रहा है, एंट्री हो जा रही है, सेम पासवर्ड। देखो कितने बंदे, 2-3 बंदे तो गए सेम पासवर्ड के साथ। अब कोई बंदा आया होशियार दूसरा है, ओके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसने क्या कर दिया, उस पासवर्ड को ही चेंज कर दिया। अब उस पासवर्ड को अगर चेंज कर दिया तो दूसरे बंदे को पता है क्या चेंज किया हुआ पासवर्ड नया पासवर्ड गाइस, दे अवेयर विद दैट, वो अवेयर है क्या उस पासवर्ड से, नए पासवर्ड से, दे आर नॉट अवेयर विद दैट न्यू पासवर्ड, ओके। वो पुराना ही पासवर्ड क्या करेगा, एंटर करेगा, एंट्री होगी क्या उसकी गाइस, एंट्री नहीं होगी। ये होता है कि डिसएडवांटेज, अगर किसी ने लॉगिन या तो पासवर्ड चेंज कर दिया तो सारे के लिए वो पासवर्ड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा तो उसका क्या होगा, बाकी लोगों की एंट्री होगी, नहीं होगी। जैसे कि आपका पिन कोड होता है, एटीएम का पिन, एटीएम पिन आपका प्राइवेट होता है, वो शेयर नहीं करते हम किसी के साथ। अगर किसी और बंदे ने या तो किसी ने हैक कर दिया आपका अकाउंट, उसने वो पिन चेंज कर दिया है, तो आप आपके एटीएम से पैसे विड्रॉ कर सकते हो क्या गाइस, नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको एटीएम का पिन ही पता नहीं है, रॉन्ग पासवर्ड बता रहा है पिन हमारा, यस। तो ये वाला भी सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम किस में बनाएंगे, पेटीएम पिन, एटीएम पिन गाइस, स्ट्रिंग का यूज करके बनाएंगे। जितने जहां भी सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करनी है, सिक्योरिटी पर्पस एप्लीकेशन डेवलप करना है, तो हम किस क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, स्ट्रिंग का यूज करेंगे। व्हाई, बिकॉज इट इज इम्यूटेबल, वो कोई भी बंदा उसको चेंज नहीं कर सकता, एग्जिस्टिंग जो भी है उसे चेंज नहीं कर सकते। अभी देखा कि हमने कॉमन है, कॉमन थिंग्स मीन्स, जैसे कि हम एक पीसी है, कोई पीसी है ना, वो सबके साथ है। जैसे कि हमारे लॉक होता है, लॉक, घर का लॉक है ना, तो एक है ना 3 की का या तो 4 की का हमने एक लॉक लगा दिया है घर को, तो हर बंदे के पास उसकी की है, 4 बंदे तो चारों के पास की है, तो कोई बंदा कभी भी आके लॉक खोल के एंटर कर सकता है घर में, राइट। अगर एक बंदे ने क्या कर दिया, वो लॉक ही चेंज कर दिया है, लॉक चेंज कर दिया कि बाकी के पास जितनी कीज थी ना 3 लोगों के पास,
वो कोई काम की है क्या गाइस? क्योंकि लॉक ही चेंज हो गया है, तो वो एंट्री हो सकती है कि उनकी गाइस? उनकी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि उसने एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट था ना, उसको चेंज कर दिया है। तो बाकी बंदों की परेशानी हो गई, राइट? तो स्ट्रिंग सिक्योरिटी पर्पस के लिए बहुत मोस्टली स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यूज किए जाते हैं, क्योंकि इम्यूटेबल होते हैं, वो मॉडिफाई नहीं होते। जो भी ऑब्जेक्ट बनता है ना एग्जिस्टिंग, जो भी पहला ऑब्जेक्ट बनता है उसमें मॉडिफाई नहीं होता है। अगर मॉडिफाई करना है तो उससे आप रेफरेंस नया बनाओ, जैसे कि हमने हमारे प्रोग्राम में बनाया है अभी। नाउ वी आर क्रिएटेड, हमने क्रिएट किया है ना S1 से, किसे क्रिएट किया है? जावा। अब यहाँ पे ना जावा में ना उसने इस बंदे ने क्या कर दिया है? कॉन्फिनेट कर दिया है, उसके साथ नई स्ट्रिंग जोड़ दी, नया ऑब्जेक्ट जोड़ दिया, तो उसका आउटपुट आ रहा है जावा सेलेनियम। तो हमने प्रिंट करके देखा जा S1 को, तो S1 की वैल्यू जो थी पहले, वही वैल्यू यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, नई वैल्यू हो रही है क्या गाइस? जावा था तो जावा ही हमारा आउटपुट आ रहा है। एग्जिस्टिंग जो ऑब्जेक्ट था वो मॉडिफाई हुआ है क्या? नहीं हुआ। दिस इज अ स्पेशल फीचर ऑफ अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। वो इम्यूटेबल्स होते हैं, सिक्योरिटी पर्पस के लिए मोस्टली स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का ही यूज होता है। समझ में आ गया? जैसे कि कंपनी में एंटर कर रहे हैं, वहाँ पे सबके लिए कॉमन एक पासवर्ड रहेगा एंट्री के लिए, वो अगर किसी ने चेंज कर दिया कि बाकी बंदों को, अब वो तो पासवर्ड पता ही नहीं रहेगा, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है ना। या आपसे देखो ना, S1 पे हम कोई ऑपरेट कर दे रहे हैं, नया मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो S1 के साथ रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या वो गाइस? नहीं हो रहा है। सबके मोबाइल पे तो मैसेज नहीं जाएगा, पासवर्ड इज चेंज, न्यू पासवर्ड इज दिस, ओके, दैट इज अ न्यू पासवर्ड करके आएगा क्या मैसेज? नहीं आएगा, क्योंकि उस बंदे ने चेंज किया तो उसको ही पता है, बाकी सारे अटक जाएंगे। तो सिक्योरिटी पर्पस स्ट्रिंग इज यूज्ड इन आवर जावा प्रोग्रामिंग, क्योंकि व्हाई? दे आर इम्यूटेबल। यस, 1 minute guys, huh? ओके गाइस, यहाँ पे क्या हो रहा है? एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं सिक्योरिटी पर्पस? नहीं कर सकते। अब देखो कि स्ट्रिंग है ना फाइनल होती है, व्हाई स्ट्रिंग क्लास इज अ फाइनल इन जावा प्रोग्रामिंग गाइस? क्योंकि सारे के सारे मेथड जिस तरीके से वर्क होती है स्ट्रिंग में, वो सेम वर्क हो सके। ओके, क्योंकि अगर मॉडिफाई करना है हमें, तो हम उसे ओवरराइड करेंगे स्ट्रिंग मेथड्स को। मॉडिफाई कर रही है तो उसका आउटपुट जो रहेगा, एक्सपेक्टेड आउटपुट, जो भी उसका वर्किंग रहेगा, लॉजिकल थिंग्स जो, तो वो सारे क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, राइट? करके ना जावा में स्ट्रिंग इज अ फाइनल। ओके, जैसे कि कॉनकेट का रूल्स, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है कि दो स्ट्रिंग को जोड़ना, अगर इसे ओवरराइड करके विद न्यू इम्प्लीमेंटेशन के साथ इस फंक्शन को हम इम्प्लीमेंट कर दें, तो ओवरराइडिंग का उसका सॉरी उसका जो जोड़ने का काम है, उसमें चेंज करके अगर दूसरा लॉजिक लिख देंगे तो रिफ्लेक्शन मीन्स रिफ्लेक्ट, अलग लॉजिक वर्क करेगा वहाँ पे। तो सेम लॉजिक सेम जगह हर एक स्ट्रिंग क्लास में उसका सेम तरीके से यूज हो, हर एक लॉजिक में करके ना स्ट्रिंग इज अ फाइनल होती है। स्ट्रिंग क्या होती है जावा में? फाइनल होती है, क्योंकि हर एक मेथड सेम फंक्शन रिफ्लेक्ट करे, राइट? जो भी उसका लॉजिक रहेगा, कॉन्केट का जोड़ना है तो इक्वल का इक्वल करना है, कंटेंट कंपैरिजन, तो उसके लिए। अब नेक्स्ट होता है कि हमें कंपैरिजन करना है अपस्ट्रीम में। हमने यहाँ पे देख लिया कि लिटरल से हम बना रहे हैं, तो कहाँ पे स्टोर हो रहा है? ACP में स्टोर होता है। हिप के मेमोरी में एक स्पेशल टाइप की मेमोरी क्रिएट होती है, ब्लॉक क्रिएट होता है, किसके लिए? स्ट्रिंग के लिए। स्ट्रिंग कांस्टेंट को वहाँ पे अगर एग्जिस्टिंग है तो नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, एफिशिएंट मेमोरी यूज होनी है, हिप मेमोरी का एफिशिएंट यूज करना है हमें। तो उससे हम किस थ्रू से ऑब्जेक्ट बनाएंगे? हाउ कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट? बाय यूजिंग लिटरल वे। ओके, तो उसका मेमोरी का यूज हमें अच्छे से कर सकेंगे, हम एफिशिएंट होगी, मोर मेमोरी यूज नहीं होगी वहाँ पे, राइट? देन यहाँ पे अगर बना रहे हम मॉडिफाई कर रहे हैं तो एग्जिस्टिंग में मॉडिफाई नहीं होता है, S1 में जो रहेगा वही रहेगा। अब देखो कि यहाँ पे ना इससे हम क्या कर देते हैं, नए ऑब्जेक्ट मीन्स नया रेफरेंस दे देते हैं इसे S2। तो अभी क्या हुआ गाइस, यहाँ पे S1 से तो आउटपुट नहीं आ रहा था, इसमें अगर हम S2 प्रिंट करते हैं तो सीसो में वैल्यू क्या रहेंगे? आप सीसो की गाइस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S2? जावा सेलेनियम करके वैल्यू रहेगी। जावा सेलेनियम नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसे कौन रिफ्लेक्ट करेगा? किस में हमारे मेमोरी एड्रेस स्टोर होगा गाइस? S2 पॉइंट करेगा जावा सेलेनियम को, ओके, ACP में।
अब यहाँ पे अगर हमें कंपैरिजन करना है बिटवीन द इसमें S1 एंड S2 डॉट इक्वल, इक्वल किसके साथ करना है हमें, S2 के साथ, S2 के साथ इक्वल है क्या गाइस, नाउ इट इज इक्वल विद द, अगर इक्वलिज्म करना है तो डायरेक्टली हम इसे प्रिंट करके देखते हैं, ना तो एक नया वेरिएबल बना लेते हैं, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट बुलियन वैल्यू। इसमें अगर बी कॉल करते हैं तो अब यहाँ पे आउटपुट क्या रहेगा गाइस, ट्रू रहेगा कि फॉल्स रहेगा, ऑब्वियसली फॉल्स रहेगा, बिकॉज बोथ आर नॉट सेम। तो कंटेंट कंपैरिजन अगर कर रहे हैं तो इक्वल्स है तो बोथ आर इक्वल्स नहीं है। देखो यहाँ पे फॉल्स करते हैं, आंसर आ रही है, राइट। तो हमें कंपैरिजन करनी है, दो स्ट्रिंग अगर कंपेयर करना है तो हाउ कैन कंपेयर बोथ द स्ट्रिंग्स गाइस, थ्री वेज हम कंपेयर कर सकते हैं। एक तो होता है कि इक्वल मेथड यूज करके बाय यूजिंग द इक्वल्स मेथड, और दूसरा होता है कि डबल असाइनमेंट ऑपरेटर। उससे क्या होता है कि रेफरेंस कंपैरिजन होते हैं गाइस, स्ट्रिंग्स मींस कंटेंट कंपैरिजन नहीं होता है, कंटेंट कंपैरिजन करना है। कंटेंट मींस जैसे कि S1 में क्या है गाइस, जावा करके, S2 में क्या है, अभी नाउ न्यू ऑब्जेक्ट इज जावा सेलेनियम, ये हुआ कंटेंट। कंटेंट कंपैरिजन करना है तो हम किसका यूज करेंगे, इक्वल्स मेथड का। अगर रेफरेंस कंपैरिजन करना है S1 एंड S2 रेफरेंस कंपेयर करना है, बोथ द रेफरेंसेस कंपेयर करना है, तो देन डबल इक्वल ऑपरेटर यूज करते हैं। अब देन लेक्सिकली हमें अगर कंपेयर करना है तो कंपेरेटिव मेथड का यूज करते हैं। अब कंपेरेटिव मेथड कंपेरेबल इंटरफेस में भी होती है और यहाँ पे उसे इंप्लीमेंट किया गया था ओवरराइट करते हैं, ओके। नाउ सी विल सी द कंपैरिजन ऑफ द टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग का कंपैरिजन करना है राइट नाउ। स्ट्रिंग S2 इज इक्वल टू क्या हुआ है गाइस, अभी यहाँ पे बना दिया हमने जावा करके बना दिया second string. Now third string, we'll take our third string. S3 is equal to new, यहाँ पे बना दिया हमने इक्वल, चेक करना है इक्वलिटी, SOP में कर लेते हैं डायरेक्टली S1 डॉट इक्वल्स S2, बोथ आर इक्वल्स गाइस, हमें बोथ द कंटेंट कंपैरिजन करना है तो S1 डॉट इक्वल्स S2, इसका आउटपुट क्या आएगा गाइस, ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा, सी ट्रू इज द आउटपुट, ओके। जावा एंड जावा बोथ आर द सेम, मींस कंटेंट कंपैरिजन कर रहे हैं हम, जावा किसका कंटेंट है, S1 का कंटेंट है, सेकंड जावा किसका कंटेंट है, S2 का कंटेंट, राइट, बोथ द कंटेंट्स आर इक्वल्स। अब देखना है कि हमें S1 डॉट इक्वल्स किसके साथ इक्वल करना है गाइस, S3 के साथ इक्वल करना है। अब इसका आउटपुट क्या करेगा गाइस, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ S1 गाइस, जावा करके, S3 का कंटेंट क्या है गाइस, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ S3, जावा। तो आउटपुट क्या रहेगा हमारा, ट्रू, यस, सी ट्रू करके आउटपुट रहेगा, राइट। यहाँ तक हमारा ठीक है। कंटेंट कंपैरिजन बाय यूजिंग इक्वल मेथड, अगर दो स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं है ये चेक करना है तो दिस फंक्शन को यूज ओवर देयर गाइस, इक्वल फंक्शन हम यूज करेंगे। दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट अगर कंपेयर करने हैं हमें, देन वी यूज विच मेथड गाइस, इक्वल्स मेथड यूज करेंगे। अगर रेफरेंस कंपैरिजन करना है, अब नाउ सी गाइस, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन लॉजिकली। नाउ कंटेंट कंपैरिजन तो हमारा हो गया, प्रेफरेंस कंपैरिजन, देन वी यूज गाइस S1 equals to S2। अब S1 equals to S2 अगर रहेगा S1 both references are equal, okay, both the references are equals, right। अब इनका है ना रेफरेंस कंपैरिजन कर रहे हैं S1 एंड S2 रेफरेंस कंपैरिजन। अब तो इसका आउटपुट क्या रहेगा गाइस, बोथ आर अगर सेम हो गए रेफरेंसेस,
तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अदरवाइज यहाँ पे ना बोथ रेफरेंसेस आर इक्वल्स, क्योंकि यहाँ पे इफ कंडीशन ट्रू है, इफ कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ लूप क्या करेगा, एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होगा मींस S1 एंड S2 क्या है, बोथ दी रेफरेंसेस आर सेम। अब उसके बाद हमें S1 किसके साथ कंपेयर करना है गाइस, S3 के साथ। नाउ सी नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे बना देते हैं S3। इसका आउटपुट क्या रहेगा गाइस, ये बॉडी पार्ट वर्क करेगा क्या, ये लूप वर्क करेगा। नाउ सी ओके, यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ क्या गाइस, कोई आउटपुट आया, यहाँ पे बोथ रेफरेंसेस आर इक्वल करके आउटपुट आया क्या गाइस कंसोल पे, बोथ रेफरेंसेस आर इक्वल्स करके कोई भी आउटपुट नहीं आया। मींस इसका मतलब हुआ कि ये बोथ रेफरेंसेस आर नॉट इक्वल, दोनों की इक्वल्स है क्या, नहीं है। व्हाई दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर गाइस, बिकॉज द सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं क्या गाइस, क्योंकि अगर लिटरल से बना रहे हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है, एसीपी में बनता है। S2 से भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम लिटरल से, तो कहाँ बन रहा है, एसीपी में लोड हो रहा है। तो लोड हो रहा है तो नया ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो आपके जावा नाम से नहीं बन रहा है। एक ही जो पहला ऑब्जेक्ट बना था उसे ही कौन पॉइंट कर रहा है, S2 पॉइंट कर रहा है। तो ना किस तरीके से हो रहा है इंटरनली, देखो S1 से एक बनाए और S2 से एक बनाए। S2 is equal to, स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में हम देखा है, स्ट्रिंग लिटरल से अगर बन रहा है तो सेम ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट होता है, नया ऑब्जेक्ट बनता है तो उस टाइम रिटर्न अ रेफरेंस। अब इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट रिटर्न रेफरेंस रिटर्न कर देगा किसे, S2 को। नया ऑब्जेक्ट बनेगा क्या यहाँ पे जावा नाम से, नहीं। S1 भी सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा और S2 भी सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। तो इनका क्या हो रहा है गाइस, सेम रेफरेंस है। S1 का भी रेफरेंस क्या है गाइस, यहाँ का मेमोरी लोकेशन 1 चलो कि बाइनरी नंबर में होता है 10 10 10 ओके, इस तरीके का है। इस सेम हो ना 10 10 1 कहाँ पे, S1 में स्टोर हुआ है मेमोरी लोकेशन, S2 में भी सेम मेमोरी लोकेशन स्टोर हुआ है। तो S1 इक्वल डबल इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर बनाएंगे तो S2 करेंगे तो ट्रू रहेगा, राइट। अगर थ्रू द न्यू से अगर बना रहे तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है गाइस, यहाँ पे हिप में बन जाएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट बन रहा है। यहाँ का मेमोरी लोकेशन जैसे कि हमने बना दिया ना, यहाँ पे न्यू, कंटेंट तो सेम है बट मेमोरी एड्रेस क्या रहेगा उनका गाइस, अलग रहेगा। यहाँ पे बन गया हमारा, सॉरी यहाँ पे किससे में बना रहे हैं, इससे हम S3 से साथ बना रहे हैं ना। अब S3 किससे पॉइंट कर रहा है गाइस, कहाँ का मेमोरी लोकेशन स्टोर है इसमें, यहाँ का मेमोरी हीप में। ओके, अब देखो कि यहाँ की मेमोरी लोकेशन क्या है, यहाँ पे 1001 करके। अब ये 1001 है ना, इसके साथ कंपेयर करेंगे हम, रेफरेंस कंपेयर करेंगे तो बोथ दी रेफरेंसेस, बोथ दी मेमोरी लोकेशन रेफरेंसेस आर इक्वल है क्या गाइस, डिफरेंट है। तो रिटर्न क्या आएगा, फॉल्स आएगा, राइट। अगर इंटरव्यूअर आपको पूछता है कि हाउ टू कंपेयर रेफरेंसेस ऑफ अ स्ट्रिंग बाय यूजिंग अ डबल इक्वल ऑपरेटर, यूजिंग अ डबल इक्वल ऑपरेटर हम क्या करते हैं गाइस, रेफरेंस कंपैरिजन करते हैं। अगर कंटेंट स्ट्रिंग कंटेंट अगर हमें कंपेयर करने तो देन इक्वल्स मेथड कॉल करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो कि ये वाला बायोजिंग न्यू से हम बना रहे तो वो कहाँ हो रहा है, यहाँ पे स्टोर हो रहा है, ओके। उसका मेमोरी एड्रेस क्या है 1001, और जो जावा बनाए S1 और S2 से बनाया वो किस मेमोरी एसीपी में बना है 10101 मेमोरी लोकेशन के साथ, मेमोरी एड्रेस के साथ, राइट। यहाँ पे हमने प्रोग्राम में देखा कंटेंट तो सेम है, यहाँ पे कंटेंट क्या आ रहा है, S2 का कंटेंट जावा है, S1 का भी कंटेंट जावा है, S3 का भी कंटेंट जावा है, सेम है कंटेंट तो सेम है। कंटेंट कंपैरिजन अगर करोगे यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा गाइस, कंटेंट कंपैरिजन कर रहे हैं तो ट्रू आएगा, यहाँ पे भी कंटेंट कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम रिजल्ट क्या आएगा गाइस, ट्रू आएगा। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं गाइस, रेफरेंस कंपैरिजन कर रहे हैं। इसमें मेमोरी एड्रेस क्या है
और S3 का मेमोरी एड्रेस क्या है। अब S1 में मेमोरी अलग अलग एड्रेस है, S3 में अलग है, तो यहाँ पे क्या आएगा गाइस, फॉल्स करके रिजल्ट आएगा। फॉल्स आएगा तो ये लूप वर्क करेगा क्या, ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, तो अगर न्यू से हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं बाय यूजिंग न्यू एंड लिटरल, बोथ दी ऑब्जेक्ट अगर कंटेंट सेम रहेंगे बट उन सेम हो सकते हैं, सेम होते ही है वो, ओके सॉरी सेम सेम हो सकते हैं, राइट। जैसे कि कंटेंट यहाँ का है ना, जावा है S1 से और S3 से जावा है, दोनों भी कंटेंट्स क्या है, सेम ऑब्जेक्ट है, बट उनका मेमोरी लोकेशन है ना सेम नहीं रहेगा अगर रेफरेंस कंपैरिजन करना है। अब इसमें है ना S1 से क्या करेंगे हम, रेफरेंस इसका एड्रेस मेमोरी एड्रेस किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, S3 के साथ, तो उनका मेमोरी एड्रेस सेम रहेगा क्या गाइस, सेम नहीं रहेगा। उनके कंटेंट सेम रह सकते हैं बट उनका मेमोरी एड्रेस सेम नहीं रहेगा। अब देखो अगर लिटरल से बना रहे हैं हम, लिटरल से सेम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, S1 का कंटेंट क्या है, जावा, S2 का भी अगर लिटरल से बना रहे हैं जावा, तो बोथ भी म्हणजे दो ऑब्जेक्ट बनेंगे क्या गाइस मेमोरी में SCP के, जावा एक बनेगा और दूसरा एक जावा बनेगा क्या S1 के लिए और S2 के लिए, नहीं, सेम ऑब्जेक्ट जो बना है पहले वही रिप्लेस कर देगा, रेफरेंस रिटर्न हो जाएगा। उस टाइम क्या रहेगा, S1 और S2 का इक्वल करेंगे हम, डबल ऑपरेटर, डबल इक्वल ऑपरेटर यूज करके, तो उस टाइम ट्रू आंसर आएगा, क्योंकि एक ही रेफरेंस है, एक ही मेमोरी एड्रेस को बोथ दी रेफरेंसेस आर पॉइंटेड, S1 भी और S2 भी किसे पॉइंट करे, सेम मेमोरी लोकेशन को करेंगे। अगर S3 के लिए देखा जाए तो S3 की मेमोरी अलग रहेगी, वो कंपेयर नहीं होते। समझ में आ गया गाइस, ओके। तो स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल होती है, स्ट्रिंग है ना फाइनल होती है, हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, राइट। अगर हमें चेंज करना है, अभी तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्या किस तरीके का हमारा, इम्यूटेबल, हम उसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते। हमने मेमोरी के लिए भी देखा है, सिक्योरिटी के लिए भी देखा है, सिक्योरिटी पर्पस वाई स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, ओके। अब होता है कि स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर। अब स्ट्रिंग बफर क्या होती है, म्यूटेबल, स्ट्रिंग बफर इज अ म्यूटेबल। स्ट्रिंग बफर कब इन्वेंट हुई है, जेडीके 1.5, जेडीके 5 में ना उसका इन्वेंट हुआ है, 1.5 में वो ऐड किया है जावा में। उसका स्पेसिफिकेशंस क्या है, म्यूटेबिलिटी, म्यूटेबिलिटी मींस उसका ऑब्जेक्ट है ना हम मॉडिफाई कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है ना मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। बट स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट अगर लिटरली बनाते हैं, लिटरल वे से अगर बनाते हैं तो वो मॉडिफाई होगा क्या गाइस, मॉडिफाई नहीं होगा, राइट। चलो ठीक है, यहाँ पे आज तक हमने स्ट्रिंग का देखा है, स्ट्रिंग बफर बिल्डर कल देखेंगे। तो उसके साथ जो इम्पोर्टेंट फंक्शन थे हमने देखे कि कौन से फंक्शन देखा हमने, इक्वल देखा,